First of all, I introduce our guest speaker, Dr. Muhammad Amir Kitwani. He has done his graduation from Buckeye Institute of Pharmaceutical Sciences. He has 10 years of experience in providing medication service. He has worked with international hospitals in UAE and National Hospital Aga Khan University Hospital in Pakistan. He has a license as a clinical pharmacist in DHA, Dubai Health Authority, and Specialist A from Ministry of Health UAE. He also has teaching experience in Faculty of Pharmacy, Hamdard University. He has earned his degree from world-renowned university, including Harvard University, USA, and University of Sunderland, UK. Sir, we are very grateful to you for giving us your precious time. Now, I hand it over this to you to start this session. Thank you very much. I hope my voice is very clear. Is it clear? सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है. आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? Okay. Yes. Thank you for your confirmation. First of all, allow me to thank your team and the society for giving me an opportunity to speak in this platform and express my opinion how to develop your career in a clinical pharmacist for a clinical pharmacist position in Pakistan. My apologies that I was not able to appear as a presentation in this one as due to COVID and my hectic job routine. I'm working as a manager pharmacist and a clinical pharmacist specialist in Lady Reading Hospital. Okay. So just a background. What I'm going to do today is to tell you a story of myself from 2004 to 2021 so that people can understand what is the difference that I made to build my career as a clinical pharmacist. And might be from that particular story, you might learn something or adapt to change your career pathway or fasten your career pathway to become a clinical pharmacist. Oh, okay. The voice is not so clear. Is it clear now? Speak loudly. Okay. Let me correct that thing. Is this okay? Great. So my apologies that I could not prepare my presentation because of my hectic workload due to COVID in LRH Hospital. Okay. So just a background. I did my bachelor from Buckeye Medical University in 2004. And then a master's from University of Sunderland in Clinical Pharmacy, then an MBA in Pharmaceutical Business Sciences, and now I have written a school program from Harvard University. Recently I have finalized my PhD also, so that is the thing. With experience-wise, I have worked nationally and internationally. I have been working in UAE as a clinical pharmacist and hospital manager in different hospitals, in JCA accredited hospitals. When came back to Pakistan, I was given an opportunity in Aga Khan University Hospital as a clinical pharmacy specialist or a specialist. I was responsible for drug information center and few other responsibilities also, like training and development. Now I am working in Lady Reading Hospital as a manager pharmacy, clinical pharmacy specialist. Now, I'm happy to see, mashallah, at least 70 people who are engaged in this webinar, showing your passion towards clinical pharmacy. The very first thing is that what I understand to become a clinical pharmacist is to be passionate. Passionate to help patient. If you are not passionate enough, you
it would be very hard for someone to become a clinical pharmacist, because clinical pharmacist requires a lot of efforts that includes a lot of reading, day by day reading and upgrading yourself to become updated with all the new information that can help your patient and physicians and the nurses to provide one of the best care, pharmaceutical care, the patient at the right time and at the right time. Again, if you are passionate, you can become a clinical pharma specialist. But for that, especially in a developing country like Pakistan, it's a bit difficult, because in many of the institutions, in academic institution of pharmacy, we do not have established clinical pharmacy practitioners or the teachers, or we do not have hospitals who provide complete training with respect to hospital or a clinical pharmacy one, unfortunately. So in such scenario, how can one build their career in this regard? The very first thing I would recommend to understand what is PharmD degree and what is the difference between the PharmD pharmacist who has done it from abroad, especially in USA, and one who has done it clinical pharmacist. One is through a master's degree. There are the various degrees that are available for the pharmacist, so that they can get an expertise in different specialties, that is nuclear pharmacy, oncology, pharmacotherapy, medicine therapy management. There are different geriatrics. There are different courses available, and once you have attained that certificate, you have done that your course, then you can practice as a specialist in that one. The other method is through a residency program. The residency program is very similar to that what we have for the doctors here in Pakistan. One has to go through a 1 year, 2 year training program, that is postgraduate 1 year, PGY1 and PGY2. PGY1 is a general training system, and PGY2 is a specialized training system. Or nowadays it's PGY3 also and PGY4 also for a super specialty in pharmacy. That is one of the one that you go through a training program, completely a residency training program, and you become a specialized in a particular field in clinical pharmacy. The last option is the one through board certification, that is board certified clinical pharmacist, BCPS, board certified clinical pharmacy specialist one. And there are around 8 to 12 specialties enrolled in that particular. You have to give, this is a certification exam that you have to appear. But again, in that particular one, in any of those one, if you go and review it, they require 4 years of experience. And after that 4 years experience as a licensed pharmacist, you can get to enroll. सब स्टूडेंट अच्छे से समझ गए. ओके, थैंक यू वेरी मच कि आपने. अच्छा, मैं उर्दू में, माय अपॉलजीज, मेरी नेचुरल वो इंग्लिश ज़्यादा होती है, तो माय अपॉलजीज फॉर दैट. अच्छा, थैंक यू फॉर. अच्छा, फिर से मैं थोड़ा सा फिर से बयान कर देता हूँ. द थिंग इज दैट कि आपको फार्मासिस्ट यूएस फार्मासिस्ट को देखिए ट्रेनिंग करने के लिए पहले 2 या 3 साल आपको ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में करनी पड़ती है. फिर 3 साल के बाद 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है प्री लाइसेंस के अंदर, अंडर द सुपरविजन वन. और फिर उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के. एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने का पोजीशन ये होता है कि आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स करें. डिफरेंट स्पेशलिटीज के अंदर मिलते हैं आपको. मेडिसिन थेरेपी में मिलते हैं, ऑन्कोलॉजी में मिलते हैं, न्यूक्लियर में मिलते हैं, जीरियाटिक्स में मिलते हैं. मुख्तलिफ उसके अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल होती है. आप वो करते हैं और आप क्लिनिकल फार्मेसी के तौर के ऊपर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू होता है. एक तरीका ये होता है. दूसरा तरीका होता है यूएस के अंदर रेसिडेंसी प्रोग्राम. रेसिडेंसी प्रोग्राम ये होता है जैसे कि हमारे पास 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स को FCPS करने के लिए आपको 1 या 2 साल या 3 साल किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होना पड़ता है, और 4 साल तक किसी सुपरविजन के अंदर किसी स्पेशलाइजेशन में काम करना पड़ता है. उसी तरह से यूएस के अंदर रेसिडेंसी प्रोग्राम होते हैं. This residency program is also available in Pakistan. If I'm not wrong, in 2 or 3 institutions. Aga Khan के अंदर, that what I was leading. Aga Khan के अंदर था. Second आपके पास
ड्रग्स होती है जो आपको ऐड करती है। फार्मासिस्ट क्या करता है? फार्मासिस्ट ये करता है कि वो हार्म होने से प्रिवेंट करता है। अगर आपने डोजिंग एरर कर दी है या कुछ और डोजिंग एरर हो जाती है, ड्रग इंट्रैक्शन है, एडीआर है, तो उससे प्रिवेंट करता है। इससे अमवात या डेथ को कम करता है। तो फार्मेसी इज बेसिकली अ प्रोफेशन हु प्रिवेंट्स हार्म टू द पेशेंट। ठीक है, क्योंकि हमें एहसास है, यूएस के अंदर एहसास है कि ये बहुत ही अहम पोजीशन है। जहां डॉक्टर बचा रहे हैं वहां से पेशेंट को हार्म से भी बचाना है। तो फार्मासिस्ट प्ले अ मेजर रोल इन दैट थिंग। तो 8 साल की पढ़ाई और सख्त मेहनत के बाद एक वहां पे फार्मासिस्ट एस्टैब्लिश होता है। Now look into Pakistan. I am a graduate from Pakistan. B pharmacy. We all know that जब हम ग्रेजुएट होते हैं फार्मेसी से, even when I graduated, I did not know many names or the generic or the chemical name of the drugs, or I did not know even the doses also. ना मुझे डोजेस पता थी, ना मुझे ड्रग इंट्रैक्शंस पता थे, ना मुझे एडीआर रट्टा पड़े हुए थे। हमें तो नहीं पता होता। जब हम ग्रेजुएट के तौर पे निकलते हैं, इवन इफ व्हेन आई इंटरव्यू इन मेनी ऑफ द टाइम्स आल्सो, many graduates do not know the maximum dose of paracetamol. Just imagine that कि वो फार्मासिस्ट हैं, 5 साल डिग्री लेके आए हुए हैं, एंड दे डू नॉट नो द बेसिक ड्रग की मैक्सिमम डोज। या तो नॉर्मल डोज हमें तो सबको, या पैराडोल की सबसे नॉर्मल डोज बोलेंगे तो वो हमारा परच्यून वाला भी बता देगा कि 1 टैबलेट ले लो, 2 टैबलेट ले लो दिन में 3 दफा। मगर मैक्सिमम डोज तो फार्मासिस्ट को पता होने चाहिए। Now this is the dilemma that we are facing in Pakistan, and that is why in Pakistani system, healthcare system, the pharmacists are not very much recognized because they are not able to contribute too much in the system. हमारे पास जो टेक्नीशियंस होते हैं, अच्छा मैं फिर कहानी, अच्छा जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने सबसे पहला 23rd मार्च को मेरी ग्रेजुएशन थी, और 24th आई गॉट अ जॉब इन OMI हॉस्पिटल. I observed, and I used to take pride because my knowledge was good. I was a 3.59 GPA student. I thought that I was excellent, and when I will go to the hospital, I will save life and prevent one. On the contrary, ये हुआ कि मुझे पता चला कि मेरी नॉलेज तो वाकई जो मैं पढ़ के आया हूँ, वो तो मोड ऑफ एक्शन पढ़ के आया हूँ, ये सारी चीजें पढ़ के आया हूँ, जो कि डॉक्टर को नहीं सुननी। उसने तो पूछना है कि भाई इस मेडिकेशन का डोज बताओ, इसका आइडिया बताओ, इसका मेडिकेशन इंटरेक्शन बताओ, ड्रग इंटरेक्शन बताओ, या इसकी काउंसलिंग बताओ, ये चीजें बताओ आप। या फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन, ये तो बहुत बड़ी चीज थी जो हमें पता भी नहीं थी, तो ना हमें हमारे इल्म में। वी डिड नॉट हैड बीएनएफ एट द टाइम आल्सो। मैंने तो बीएनएफ 1986 की बीएनएफ देखी थी हमारे दौर के अंदर। यू गाइस आर वेरी लकी दैट यू हैव बीएनएफ फार्माकोथेरेपी की जो किताब है, डिप्यूरो साहब की, प्रोफेसर डिप्यूरो की किताब है। You have it all. You have all in PDF available in nowadays. हमारे पास तो नहीं थी। Anyhow, तो I saw that even the technicians जो हमारे साथ काम कर रहे थे, they were much more knowledgeable than me, and they did not respected me because that I am a pharmacist. वो मुझे respect नहीं करते थे because they knew that I knew nothing. मुझे तो कुछ नहीं आता था। वो कहते थे कि यार एक सफेद पेपर लेके आ गया है बंदा, और वो कह रहा है कि वो हमारा लीडर बन जाएगा या वो हमें कमांड करेगा। और रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। नो वन वुड रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर वन पेपर और योर वन डिग्री पेपर। पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर योर नॉलेज, कि आपके पास व्हाट इज द नॉलेज दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट। देन इट वाज द रियलाइजेशन कि यार okay, now there is a gap, huge gap, and we have to adapt that thing. ये चीज हो जाती है। फिर okay, the one the pharmacist, अच्छा, और एक थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि जो फार्मासिस्ट इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है अपने कैरियर के इनिशियल स्टेज पे, या अपने फॉर्म डी के इनिशियल फर्स्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर में आइडेंटिफाई कर लेता है, दे स्टार्ट वर्किंग हार्डर, और वो फिर ज्यादा चीजें प्रोग्रेस हो जाते हैं। ओके, अच्छा, फिर थर्ड फेज, हाउ वुड यू कोप अप विद दिस गैप?
अच्छा, you being a student of now a graduate student, what I would recommend as an experience, I'm not 10 years, but I'm more than 15 years experience. अच्छा, ये मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ. अगर आप अभी आप सबके पास नेट है माशाल्लाह से, go and Google it. You will be amazed to see that most of the pharmacists, जो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया का जो रेट था 70% था, यूके का भी अराउंड 70% के अराउंड सबके थे. मोस्ट ऑफ द फार्मेसी ग्रेजुएट्स व्हाट दे वर डूइंग कि ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन वो किसी फार्मेसी के साथ अटैच हो जाते थे, हो जाते हैं. ये यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको बता रहा हूँ. एंड वंस दे आर अटैच्ड विद दिस फार्मेसी एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन और अ फार्मेसी हेल्पर, they get directly involved with medication. अच्छा, मेडिकेशन का मसला ये होता है, ये ड्रग्स का मतलब, एक तो नाम बहुत मुश्किल होते हैं एंड बहुत मुश्किल होते हैं और यू हैव टू लर्न वेरी हार्ड एंड हार्ड होते हैं. तो यू हैव टू लर्न द डोजेज, यू हैव टू लर्न द काउंसलिंग, यू हैव टू लर्न द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आल्सो, यू हैव टू बी इन देयर. तो हर बंदा वहां पे पहले से और फिर मेजरली यू गाइस आर वेरी लकी और पाकिस्तानी आर लकी or the patient are very unlucky because all our pharmacists who graduates directly वो pharmacist बन जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर. अब उस pharmacist को चाहे कुछ आता हो ना आता हो, he can kill anyone who directly goes to hospital. And mashallah, I am seeing the number 69 people are there already which are passionate enough कि वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं. अच्छा, अब आपको गैप एनालिसिस कैसे कम करनी है? You have to understand what is your lacking. अच्छा, let me tell you, there are majority prescription involve 5 major diseases: hypertension, diabetes mellitus, respiratory, pain management, infection. हर 70 to 80 prescription आपकी इन्हीं 5 चीजों के ऊपर होती है, उसके ऊपर नहीं हो रही है. Any one of you who wish to develop their career, start working hard, start reading, get attached to a pharmacy. कोई भी फार्मेसी फ्री में काम करें, मतलब 1 घंटे के लिए चले जाएं वहां पे, मेडिसिन डिस्पेंस करें, ब्रांड याद करें, जेनरिक याद करें, डोजेज याद करें, स्ट्रेंथ समझें कि हमें डोजेज में पढ़ाया जाता है. हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ओमेप्राजोल दी जाती है 20 to 80 मिलीग्राम वंस डेली में दी जा रही होती है, मगर उसकी स्ट्रेंथ आती है 20-40 की आती है आपके इन्फ्यूजन के अंदर. दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज, कि आपको वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ में आना शुरू हो जाता है. अच्छा, गेट एनरोल. आप 5 चीजों के ऊपर कमांड पहले हासिल करें, नॉलेज हासिल करें और फिर रोज हॉस्पिटल या किसी भी फार्मेसी में जाके ट्रेनिंग लें. 1 महीने की ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं होता. लेट मी टेल यू दैट थिंग. आपको एटलीस्ट हमने जियाउद्दीन में, व्हेन आई वाज टीचिंग इन जियाउद्दीन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बैक इन 2010 एंड 10 तक मैं पढ़ा रहा था. तो हुआ ये कि व्हाट वी डिड, हमने 4th ईयर और 5th ईयर को हर हफ्ते की 1 रोज हॉस्पिटल जाने का वो कहता है और उनको केस स्टडी तो वो सब करवाना शुरू करवा दी थी. तो दैट इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ देयर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आल्सो. तो ये चीज आपको बहुत जरूरी करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, कि आपको अपनी नॉलेज गैप एनालिसिस करना है. और अच्छा, दूसरी चीज, यू हैव टू गेट मेंटोर्स. बाकी अच्छा, वन ऑफ द रीजंस, जब हम कह दिए 2004 में नो वन न्यू अबाउट क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस एट ऑल. Still I have mentors. मेरे पास मुख्तलिफ चीजों के mentors हैं. मेरे पास फार्मेसी प्रैक्टिस के mentor मतलब टीचर या जो सुपरवाइजर या कोई सिखाने वाला होता है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि जो वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या लेक्चर दे रहा है, तो मैं उसके लेक्चर भी सुन रहा होता हूँ. मैं वो आजकल क्या कौन कौन से जर्नल्स पढ़ रहा है, कौन से इसने पब्लिकेशन पढ़ी है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसके क्या थॉट प्रोसेस है. तो I got very lucky that मैंने मुख्तलिफ मेंटोर्स बनाए अपने. उनसे हर दूसरे दिन बात कर रहा होता था, सीख रहा होता था, उनसे समझ रहा होता था. तो ये हमारे दौर में तो इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं हुआ करता था. तो we used to write emails and based on those we used to learn things. But you guys are very very lucky. आपके पास किताबें, हमारे पास किताबें नहीं होती थी. You can get a PDF format of pharmacotherapy for BNF for different ones. You can easily get them. आप मुख्तलिफ मेंटोर बना लें, अपने मेंटोर्स बना लें.
यूट्यूब मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं, वो आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड स्टार्ट फॉलोइंग। फॉलो कर रहा हूँ तो आजकल मैं फार्मेसी इन्फॉर्मेटिक्स मिस्टर ब्रायन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और दो डॉक्टर उसामा बिन तबारा हैं, ये द क्लीवलैंड के डायरेक्टर थे, मैं उनको फॉलो कर रहा होता हूँ। मैं फॉलो कर रहा हूँ स्कॉट नायर का, जो क्लीवलैंड के अमेरिका के हैं, तो मैं इनको फॉलो कर रहा होता हूँ, इनकी प्रैक्टिसेस देख रहा होता हूँ, ये क्या पढ़ रहे हैं, आजकल क्या बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउअडेज। उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल हैं, अब मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया था क्लिनिकल फार्मेसिस्ट लाइफ। मैं क्लिनिकल फार्मेसी के लिहाज से बात करता रहता हूँ उसके अंदर से। उसके अंदर मैंने एक वो स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू डेवलप अ कैरियर एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन पाकिस्तान। फर्स्ट पार्ट था वो, you can see that one also at the same time. Please realize that without studying, without still at this age, at this time, I study at least 1 to 2 hours every day. Every day मैं 2 घंटे रोजाना पढ़ता हूँ, नए जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं, मुझे नई चीजें इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ती है, ताकि डॉक्टर को कोई इंफॉर्मेशन कोई चीज मिसिंग हो तो मैं उनको बता सकूं, उनकी हेल्प आउट कर सकूं, उनसे ज्यादा मेरी नॉलेज गेन हो सके। तो without reading, the first thing is you have to be passionate. Second, ऑन्कोलॉजी में मिलते हैं, न्यूक्लियर में मिलते हैं, जीरियाटिक्स में मिलते हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल होती है, आप वो करते हैं और आप क्लिनिकल फार्मेसी के तौर के ऊपर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू होता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है यूएस के अंदर रेसिडेंसी प्रोग्राम। रेसिडेंसी प्रोग्राम ये होता है जैसे कि हमारे पास 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स को FCPS करने के लिए आपको 1 या 2 साल या 3 साल किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होना पड़ता है और 4 साल तक किसी सुपरविजन के अंदर किसी स्पेशलाइजेशन में काम करना पड़ता है। उसी तरह से यूएस के अंदर रेसिडेंसी प्रोग्राम होते हैं। This residency program is also available in Pakistan. If I'm not wrong, in 2 or 3 institutions. खान के अंदर, that what I was leading, खान के अंदर था। सेकंड आपके पास अभी शौकत खानम के अंदर है, और शौकत खानम ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की एक्रेडिटेशन करवाई हुई है अपनी रेसिडेंसी की। इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। खान भी जा रहा है और इनफैक्ट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी रेसिडेंसी प्रोग्राम इनिशिएट कर रही है। इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर इनिशिएट हो जाएगा ये भी रेसिडेंसी प्रोग्राम। एक तरीका ये होता है कि आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर के ऊपर आप उसको रेसिडेंसी प्रोग्राम के थ्रू एक्सपर्टीज लेते हैं और आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट से। चौथा मेथड होता है बोर्ड सर्टिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड BCPS, बोर्ड सर्टिफाइड फार्मास्यूटिकल स्पेशलिस्ट। इसमें तकरीबन 10 से 12 स्पेशलाइजेशन है, इन्फेक्शन डिजीज है, कार्डियोलॉजी है, फार्माकोथेरेपी है, ऑन्कोलॉजी है, न्यूक्लियर है, जीरियाटिक्स है, दे आर अराउंड 12 स्पेशलिटी होती है। मगर आप अब इसके लिए भी, इस स्पेशलाइजेशन के लिए आने के लिए यू नीड एटलीस्ट अ 4 ईयर एक्सपीरियंस बिफोर अपीयरिंग टू बी एलिजिबल। आपको एलिजिबल होने के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। अच्छा, ये हो गया यूएस की मेजॉरिटी मेथड, जिसके अंदर यूएस के अंदर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। सी द एफर्ट। अच्छा, होता ये है कि ये देखिए कि अमेरिकन फार्मासिस्ट टेक्स मिनिमम 5 to 6 years। सिर्फ लाइसेंस के लिए उनको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 4 साल का आपका एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ लाइसेंस के लिए। And then after that, My name is Mohammed Usama. I am student of final year. सर मेरा ना क्वेश्चन ये है कि यूएस के अंदर हम FGPP देते हैं, PE देते हैं और उसके बाद हम NAPLEX टेस्ट देते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो सर आपने कहा है कि जब हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए जब हम रजिस्टर तो उसके लिए इन टेस्ट की बेस पर हम रजिस्टर्ड होते हैं या उसके बाद हमें ये सर मेरा ये वॉइस इको कर रही है। तो उसके लिए सर हम ये अलग टेस्ट देते हैं एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट या ये जो टेस्ट हम देते हैं ये हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पर। अच्छा, देखें, let me clear it. अच्छा, the one that you are talking about, NAPLEX and FPGEE, is a license exam of US. If you want to practice in US, you need to have a license. ठीक है,
तो उसके लिए आप FPGE देंगे और फिर NAPTEP से एग्जाम देंगे. नाउ यू बिकम अ लाइसेंस फार्मासिस्ट. लाइसेंस फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कम्युनिटी फार्मेसी में काम करें, आप एकेडमिया में काम करें, आप रिसर्च में काम करें, आप हॉस्पिटल में काम करें, क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करें, इट्स अप टू यू. जो मैंने बात की थी वो बोर्ड BPS की बात की थी, बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल स्पेशलिस्ट. यू डू नॉट नीड अ US लाइसेंस फॉर दैट वन. यू नीड अ लाइसेंस ऑफ योर ओन कंट्री. जहां से भी, इवन मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अपना लाइसेंस शो कराऊंगा कि हाँ भाई मैं पाकिस्तानी लाइसेंस फार्मासिस्ट हूँ. हाँ, और मैं 4 साल का मेरा एलिजिबिलिटी होता है कि मैंने 4 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं उसके एग्जाम, दैट एग्जाम इज ऑनलाइन एग्जाम. तो आप ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे बैठ के डिपेंडिंग अपॉन वो स्टेशन होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, आप जाके वहाँ पे एग्जाम देते हैं. आई होप आई हैव क्लियर्ड योर क्वेश्चन. जी सर. सर अर्निंग के हवाले से सर मैं पूछूंगा कि सर जो दूसरों को भी मौका दे दो. सर एक क्वेश्चन सर, अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में सर, कि अर्निंग जो है ना सर, हम कम्युनिटी फार्मेसी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी सर काफ़ी अर्निंग है अगर अपना बिजनेस है जिस तरह भी, और एज अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी सर उसमें भी अगर मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर सर जाके काफ़ी अर्निंग है. लेकिन सर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर सर पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम अगर मतलब मैंने अगर जितने भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से पूछा है तो वो सर 2 लाख या 2.5 लाख इतनी उनकी मैक्सिमम पे है. इससे ज़्यादा आफ्टर 30 इयर्स 25 इयर्स एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा पे नहीं है. तो वाकई इस तरह है या इसके अंदर ग्रोथ है, प्रमोशन एंड इट डिपेंड्स. एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इट डिपेंड्स. दिस इज यस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन. देखिए, आपका अगर एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर वो 100, 150, 250 बेड का हॉस्पिटल है, तो यस द मैनेजर फार्मेसी would get around 2 लाख 2.5 लाख मिल जाते हैं. ये एग्रीबल. अगर 200 बेड 250 बेड का हॉस्पिटल है, I also do not think that pharmacist should not get more than 2.5 lakh. But in good hospital or major hospitals, they are more than that also. मुझे पता है कि अच्छे 700 बेड से ज्यादा या 400 बेड से ज्यादा हॉस्पिटल के जो फार्मासिस्ट हैं, I cannot name them, they are earning more than 6 lakh rupees. Few of them are earning 8 lakh rupees. Again, 3 लाख तो मिनिमम लगे ही होते हैं. I know that many of those pharmacists जो मैनेजर हैं वो 3, 3.5 लाख, 4 लाख तो कमा ही रहे हैं, खड़े कमा रहे होते हैं. बट अगेन देखें, मैं अगेन ये बता रहा हूँ, दिस इज अगेन द इनिशियल स्टेज ऑफ. अभी जो हमारे पाकिस्तान में फार्मासिस्ट की अवेयरनेस या फार्मासिस्ट की वर्थ अभी क्रिएट हो रही है, अचानक अब क्रिएट हो रही है, वरना उससे पहले नहीं थी. हमारे इवन जब मैं बड़ा हो रहा था तो आई हैव टू गो अब्रॉड टू गेट मनी, टू गेट अर्निंग्स. पाकिस्तान में अब होने शुरू हुई. मैंने आपको बताया ना, मैंने 2,500 में स्टार्ट की थी मैंने अपना कैरियर. अब यहाँ पे इनिशियल स्टेज ही 18,000, 20,000, 25,000 में स्टार्ट हो रही होती है हॉस्पिटल कैरियर की. बट डिपेंडिंग अपॉन द गुड फार्मासिस्ट. एक खराब फार्मासिस्ट होगा तो मैं भी नहीं पे करूंगा. मैं व्हाई शुड आई हायर अ फार्मासिस्ट. अच्छा, मतलब ये है कि व्हाई शुड आई हायर अ फार्मासिस्ट. जो तुम आप काउंसलिंग कर रहे हो वो तो मैं एक टेक्नीशियन से भी करा दूंगा. एक टेक्नीशियन जो आपकी 25 साल की उम्र का है, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होता है फार्मेसी में. तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई शुड आई पे यू मोर? अ पर्सन, अ फार्मासिस्ट हु शोज दैट ही हैज अ यूनिक, इसको यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं, यूनिक सेलिंग स्किल कहते हैं, USP. तो आपके पास अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट है तो यू विल गेट हाईली पेड. लेट मी टेल यू दैट थिंग. हाईली पेड एनीवेयर इन नॉट इन इवन पाकिस्तान, एवरीवेयर. ये हर जगह पे होता है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. सर तैमूर बात कर रहा हूँ सर, पेशावर यूनिवर्सिटी का फ्रेश ग्रेजुएट हूँ सर. सर आप लोग जितने भी बातें की कि मतलब फार्मासिस्ट को मतलब ये चीज़ें लर्न करना चाहिए, और ये ऑल जितने भी चीज़ें सर ये एक्सपोजर की बाद ही मतलब ये मिलता है. और लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम मतलब हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता. हमें किसी मतलब ऐसी जगह में काम करने नहीं दिया जाता कि मतलब हम वहाँ पे जाके और ये अपनी जो हमारे एक्सपीरियंसेस है ये हम गेन कर लें. ठीक है सर. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है सर कि आप लोग मतलब आपने जो जितने हमें मतलब ये चीज़ें बताई है, तो आप ज़रा हमें गाइड कर दें कि आप लोगों ने कई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि आप LRH में मतलब ये जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स है या जो भी, इनको इस तरह मतलब एक्सपोजर उनको दे दिया जाए, या मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब हमें कुछ आता नहीं है, ये चीजें वो चीजें. ओके. जी सर. LRH is
हमने वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल रेसिडेंसी प्रोग्राम। मैंने उसके लिए हॉस्पिटल बीओजीज को अप्लाई कर दिया कि भाई हमें अप्रूव कर दें ये, बिकॉज ऑफ कोविड हम वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है जी सर। दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट। भाई मैं अभी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कॉल करूंगा, आई वुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्लिनिकल फार्मासिस्ट वेरी इजीली, बहुत कम मिलेंगे। तो 100 सीवी देखूंगा तो हर किसी ने क्लिनिकल फार्मासिस्ट लिखा हुआ होता है, बट उनकी नॉलेज उस कैलिबर की नहीं होती है। अगर लोगों को क्लिनिकल फार्मासिस्ट चाहिए, मगर जब वो इंटरव्यू करते हैं तो उनकी वो नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटी होती है। डेवलप योर स्किल, when you will develop your skills, let me tell you अपॉर्चुनिटी। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले आई हुई थी, 2.5 लाख की जॉब आई हुई थी कहीं पंजाब के उस पे, कि उनको पंजाब में चाहिए था फार्मासिस्ट, मुझे नहीं मिल पा रहा। ना उसके पास एमबीए है ना फार्मासिस्ट है, बहुत लोगों के पास एमबीए नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता, लोग तो खड़े हैं हायर करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्किल सेट्स हैं वो कम है। ये ट्रू फैक्ट है अनफॉर्चुनेटली, वरना अपॉर्चुनिटी बहुत है। भाई हर हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर की, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, बट दे आर नॉट रेडी टू हायर यू बिकॉज यू आर नॉट ऑफरिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल थ्रू द ऑनर्स, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, अच्छा, MBA is a good degree to have if you want to become a manager or now let me tell you that thing. Where is the future is going on? To become a director or the head of any pharmacy, you have to have 4 skills. First, आपके पास स्किल होनी चाहिए फार्मेसी मैनेजमेंट की, so for that you need to have an MBA. Second, होनी चाहिए क्लिनिकल की स्किल्स, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर के ऊपर, तो you have to have some degree or qualification for clinical one. Then the third one that is nowadays very important is pharmacy informatics. तो इसके लिए बहुत जरूरी होती है आजकल। अब ये तीसरा आपके पास, ये 3 स्किल्स आपके पास, और चौथी स्किल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इन्वेंटरी है वो, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। तो फॉर दैट आई वांटेड टू बिकम अ हेड ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट, नाउ आई हैव अ क्लिनिकल स्किल्स, इंफॉर्मेटिक्स स्किल्स एंड फॉर MBA आई डिड फॉर माय मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। तो बट टू बिकम अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट यू डू नॉट नीड एन MBA डिग्री। और कोई क्वेश्चन? सर आपकी तरफ से सर, हम जो अंडर ग्रेजुएट हैं फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मेंटोर दें हमको, अपॉर्चुनिटीज दें कि हम इंटर्नशिप वगैरह आपके थ्रू कोई। यार देखो ये मेरे भाई, लेट मी टेल यू वन स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, डू नॉट आस्क फॉर हेल्प, सीक हेल्प बाय योरसेल्फ। हमारे यहाँ सबसे मेजॉरिटी जो ग्रेजुएट का इशू ये होता है, वो कहते हैं गवर्नमेंट करके दे, यूनिवर्सिटी करके दे, दूसरे लोग करके दे। भाई यू वांट टू डेवलप योर कैरियर, करेक्ट, तो यू गो एंड आप जिस तरह से ये तुफैल और ये जो मेरे पास दूसरा लड़का था, दे केम टू मी एंड फाइंड दिस इज द थिंग दैट वी नीड इन योरसेल्फ। आपको खुद जाना है, खुद निकालना है, खुद आते हैं। मेरे पास लोग खुद आते हैं कि सर मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए होती है। यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ, गो एंड हर हॉस्पिटल में जाए, अपनी CV दें, बात करें, कोशिश करें। आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी समवेयर। ओके सर। हमारे पास किताबें नहीं हुआ करती, हमारे पास इंटरनेट नहीं हुआ करता था, हमारे पास सिखाने वाले नहीं हुआ करते थे, बट फॉर यू गाइस एवरीथिंग इज अवेलेबल। इंटरनेट पे हर किताब मिली हुई है, हर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब हैं, ऑनलाइन फ्री के कोर्सेज मिल रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। And when that graduate comes to me for a hiring and I see, I ask, अभी इंटरव्यू, अभी हमने टेस्ट करवाया था, 400-500 लोग आए थे टेस्ट के लिए, उसमें से सिर्फ मैंने एक बेसिक सवाल बनाए थे, बेसिक सवाल से उसमें से 90 लोग पास हो सके। जस्ट इमेजिन 400 लोगों में से सिर्फ 90 लोगों ने सिर्फ टेस्ट पास किए, सिर्फ, वो भी जस्ट पासिंग पे। जस्ट इमेजिन दैट थिंग। तो प्लीज एलेबरेट। अच्छा एक सवाल आया है, प्लीज एलेबरेट करें कि व्हिच स्टेप शुड बी फॉलो बिफोर स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑन फार्मेसीज। फिर प्लीज सर पूछ लें। अच्छा ओके, द थिंग इज दैट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Believe you me, starting your own pharmacy is the best thing that you can do. I would really recommend कि अपनी फार्मेसी खोल लें। अगेन मोहल्ले की दुकान में जाएं, जी सर, वहाँ पे लेकिन जाके सर 1 घंटा प्रैक्टिस करें। जी सर, लेकिन सर वही बात आती है
वही बात आती है कि आर्म टेक्नीशियन वाली काउंसलिंग वहाँ पे हमें वही इन्वायरमेंट मिलता है और वही चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मतलब जो हमारे क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मतलब इस चीज़ को समझते हैं, इनके अंडर और इनकी सुपरविजन में एक काम मतलब हम सीख ले तो वो आई थिंक वो I agree. बहुत ज़्यादा वो है, बेहतर है। I agree, Taimur. I जी agree. सर। This is you are rightly saying. But जी सर। now again, my dear, you जी have सर। to understand. We are a developing country. Pharmacy practice is not established in our country. यस Agreed? सर, यस सर, यस सर, 100%। जब मैंने ग्रेजुएट की थी, मुझे 4th ईयर में क्लिनिकल फार्मेसी का पता चला था। 4th ईयर में we did जी not सर। have BNF also. जी But सर। still, after all this hard work and everything, I became a clinical pharmacist from Pakistan. Agreed? जी सर। Now this is जी the सर। same thing for you. You जी cannot ask. ये अमेरिका नहीं है, ये यूके नहीं है, यूएस नहीं है. You have to utilize whatever opportunity you have. मैंने जैसे आपसे कहा, आप अगर आपके पास जो एक्सपोजर करने का है, यहाँ से लोग जब मैं आखान में ट्रेनिंग लेने जाता था, यहाँ से लोग जाते थे आखान में ट्रेनिंग लेने चले। अगर यू आर सो एंथुसियास्टिक, अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आखान एंड यू विल गेट दैट जॉब। अगर आपके पास नहीं अपॉर्चुनिटी, वो फिर भी 20 लेंगे, 39 ले लेंगे साल में। अच्छा, लोगों को नहीं मिल पाती अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या करें कि आप मेंटोर्स पकड़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 4-5 मेंटोर्स हैं, मैं उनसे कॉन्स्टेंटली राब्ते करता रहता हूँ, उनसे सीखता रहता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं मुझसे कांटेक्ट किया हुआ है। यू कांटेक्ट डिफरेंट पीपल। आप और सेमिनार कराते हैं, आप पूछते हैं काउंसलिंग कैसे करनी होती है, बेसिक आप पढ़े बहुत। लेट मी टेल यू, फार्मेसी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन किताबों में अवेलेबल होती है। You just need to practice. But yes, you are right. What I will do, अच्छा मुझे याद दिलाना है, मैं एक वीडियो बना दूंगा काउंसलिंग के ऊपर भी, ताकि आप लोग को आप ये जो मेरा चैनल है क्लिनिकल फार्मेसिस्ट लैब, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह उसमें मैं मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं उसमें डाल दूंगा। सर बस इसी तरह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एटलीस्ट हम लोग के लिए प्रोवाइड किया जाए आप लोग की तरफ से, कि मतलब हमें एक इफेक्टिव एक प्रोफेशनल वे से जो मतलब ये चीज़ें जो मतलब आम रूटीन में हम पेशेंट के साथ डीलिंग कैसे कर ले, या मतलब ये काउंसलिंग कैसे कर ले, तो एटलीस्ट ये हर एक बंदा तो मतलब है कि अप्रोच नहीं कर सकता ना, इश्यूज होते हैं, बाज अच्छे जगह होते हैं, ठीक है मुझे एक्सपोजर मिलेगी, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि मतलब नहीं आना, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये वो बहुत सारी इश्यूज हैं। तैमूर साहब, व्हाट आई विल डू, सब्सक्राइब टू माय चैनल क्लिनिकल फार्मेसिस्ट लाइव, आप यूज करेंगे। ओके सर, श्योर। मैं कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को आसान हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कह रहा हूं ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जो टेस्ट होता है सर, नॉलेज सही है, सही सही। ये सर ये भी फॉरेन फार्मेसिस्ट की तरह है सर, ये फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए भी स्टेप सेम है सर, ये डिफरेंट है सर? हर जगह के ना स्टेप सेम ही होते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट करना पड़ता है, और फिर लाइसेंस 2-3 एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, आई एम शेयरिंग माय यूट्यूब चैनल का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, प्लीज गो अहेड एंड लुक इनटू दैट थिंग। यूट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया, आपके मैसेजेस के अंदर डाल दिया। सर जी मैंने भी तकरीबन 1 साल हुआ है सर, एक यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ सर। मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, और मैं इतना बता रहा हूँ कि सर जितने भी मेडिसिन है सर, उनकी जो ब्रांड नेम है सर, उनकी जो क्लिनिकल इंडिकेशन डोजेस है सर, ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ सर। आप काइंडली इसको एक बार चेक कर ले। फात फार्मेसी के नाम से है, तकरीबन 70+ वीडियो मैंने इसमें अपलोड की है सर, जो और भी आप मुझे टिप्स दे सकते हो सर। ग्रेट। थैंक यू सर। मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, मुझे वैसे वो कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो कर देता हूँ। अच्छा, ये उसामा ने रेसिडेंसी में क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मेसी दोनों की ट्रेनिंग होती है, क्लिनिकल की भी होती है और की भी होती है। और स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस हो तो वो कर लें। सर सर ये राखान के जो रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है फार्मेसी के बाद, सर इसके लिए किस तरह प्रोसीजर होता है इसको ज्वाइन करने के, इसका कोई आपके बारे में पता है? वो they advertise it on the paper। उसका ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट होता है, then you have to give a test and an interview, and then you are selected for that one। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया।
नहीं, I am happy that mashallah you guys are aiming to become a clinical pharmacist or a hospital pharmacist. Thank you, sir. Thank you. But my only request to you is कि work hard. आप लोग मतलब इशू ये होता है कि पढ़ते नहीं है. प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें. मैं फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूँ. आप पढ़ें उसके ऊपर उसको पढ़ें. एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा रखें. ठीक है. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुसैन है, फार्मासिस्ट हूँ. जी सर. जी सर. सर फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई की जाती है, उसके बाद जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट देख सकते हैं? नहीं. No rules and regulations allow in the world, as per my information is, pharmacists are not allowed to diagnose. We are not an expert of diagnosis. We are an expert of medications. So we cannot see patient. आप diagnosis के लिए patient नहीं देख सकते. Yes, you can have sessions of counseling of medication. Yes, that can be seen. That can, और educational के लिए आप session कर सकते हैं. But you cannot see a patient for diagnosis or treatment. Okay, sir. ठीक है. Thank you very much, guys. Again, my all respect to all you guys. कि माशाल्लाह you guys have attended. मेरी इतनी बातें सुन ली भी आप लोगों ने. Thank you very much. LRH is open to all of you. कोई चीज हो, you can come to LRH at any of the time. Secondly, आप उसमें I can be always in contacted through my YouTube channel. उसमें सवालात आ जाते हैं तो मैं उसमें से कर लेता हूँ. आजकल मैं क्योंकि बहुत बिजी हूँ तो मैंने YouTube में कोई डाला हुआ नहीं है रिसेंटली. बट अगेन दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि काउंसलिंग का मैं पॉइंट डाल दूंगा उसके अंदर कि अच्छा वो है. तो ठीक है इंशाल्लाह. थैंक यू मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you, sir. Thank you very much.